नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत का किताब इंडियन पॉलिटिक्स से ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका यूपीएससी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पेपर 1 के लिए और नेट जेआरएफ पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आज हम आपका सेट प्रैक्टिस में करेंगे 31 और आपका चैप्टर नंबर 30 होगा। ठीक है, और इसका एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे, एक ही पार्ट होगा, पार्ट नंबर ए। और इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर होगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, और ये आपका यूनिट 4 होगा, पार्ट 4 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और चैप्टर नंबर 30 हाई कोर्ट। ठीक है, तो आपका 30 हाई कोर्ट। ठीक है, तो देखिए आपका सामने चैप्टर नंबर 30 आ गया, हाई कोर्ट का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू, आपका कोई भी सही नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गलत है। Every high court has power of superintendence over all courts and tribunals except military tribunals, provided they are subject to appellate jurisdiction of the high court। ये आपका गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 है, consider the following statement, high court has jurisdiction to। तो 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1 and 4 आर राइट, आपका 1 और 4 सही है। तो ये हाई कोर्ट हैज jurisdiction to punish for its contempt and issue certain writs for enforcement of fundamental right और फॉर अदर पर्पसेस। और बाकी आपका दूसरा तीसरा गलत है। टेंडर एडवाइस ऑन ए लीगल क्वेश्चन रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलत है। टेंडर एडवाइस ऑन ए लीगल क्वेश्चन रेफर टू इट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन आपका 3 है, द ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड बाय द, ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका 4 है, रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट, ऑप्शन नंबर सी, प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट where he has retired। The retired judge of a high court cannot practice in the high court from where he has retired। Question 5 है, the writ jurisdiction of the Supreme Court of the India under Article 32 of the Constitution of India is not wider than that of the writ jurisdiction of the High Court under Article 226 because the High Court may exercise this power in relation to, option B, fundamental and other legal right। कुछ आपका 6 है, who among the following state the jurisdiction of a high court to or excludes from any union territory, option number A, parliament by law। क्वेश्चन 7 है आपका, the nature of consultation of with the chief justice of India in matters of appointment of judges to a high court is characterized described, option number C, conformity with the opinion of the chief justice। क्वेश्चन 8 है आपका, habeas corpus, sorry assertion ये है, habeas corpus writ petition dismissed by the Supreme Court can be admitted by the High Court under Article 226 of the Constitution। रीजन आर आपका, in exercising writ jurisdiction the powers of the Supreme Court and High Court are concurrent। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो ए हैबियस कॉर्पस writ petition dismissed by the Supreme Court can be admitted by the High Court under Article 226 of the Constitution, आपका गलत है। और in exercising writ jurisdiction the powers of the Supreme Court and High Court are concurrent, ये आपका सही है। क्वेश्चन 9 आपका है, which one of the following statement is not correct, option number D, judgment of a high court do not bind the lower courts of the state, आपका गलत है। ठीक है, तो the Supreme Court can overrule itself, ये सही है। और High Court can overrule itself, ये भी सही है। judgment of the Supreme Court bind the lower court, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, the High Court having the jurisdiction in judicial matters relating to the largest number of states यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। कुछ आपका 11 है, जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर बाय, ऑप्शन नंबर बी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी। क्वेश्चन 12 है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मींस, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मींस, ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर नन एंड वॉइड एनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट which is against the provisions of the constitution। the power of judicial review means the power of the courts are to declare null and void any legislative or executive act which is against the provisions of the constitution। क्वेश्चन नंबर 13, under the provisions of the constitution of India who is entitled to be consulted by the president of India in the matter of the appointments of the judges of the high court, option number D, the governor। ठीक है, तो under the provisions of the constitution of India who is entitled to be consulted by the president of India in the matter of the appointments of the judges of the high court, option number D, the governor। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, under which articles of the Constitution of India is the power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights
वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32(1), आर्टिकल 226 से, ठीक है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, ओरिजिनल जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एडवाइजरी आपका जुडिक्शन नहीं होता, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। कुछ आपका 16 नंबर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। 30 कल हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 31, जो कि आपका होगा सब ग्रेड कोर्स से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।